All right, बच्चे लोग. So due to again some technical error, the video was half finished. So I'm continuing chapter 4 and chapter 3 जो बच गया था इसमें continue कर रही हूँ. Okay. So we were on the question both the regression coefficients cannot exceed 1. So I taught you all बच्चे लोग अगर एक regression coefficient 1 से बड़ा होता है, the second one has to be less than 0. So both cannot be big or greater than 1 at the same time. Okay. So as we know R का value itself, R का value किसके बीच में रहता है बच्चे लोग? As we saw 0 less than R less than equal to 1, correct? R का value itself is between 0 to 1. So we cannot say that both the regression coefficients बड़े होंगे तो R भी बड़ा ही आएगा फिर. All right. So that is why the answer is true that both the regression coefficients cannot exceed 1. अगर एक 1 से बड़ा है तो दूसरे को 1 से छोटा होना ही पड़ेगा. Coming to the fourth one, if byx is 1.5 and bxy is 1 upon 3, then R 1 upon 2 आता है given the data is consistent. Data consistent है ऐसा बोला गया है. So we know बच्चे लोग when we have byx and bxy तो अपने पास R का फॉर्मूला है. R is equal to plus minus square root of byx into bxy. तो square root of 1.5 into 1 upon 3. डेसिमल निकालने पे आई गेट 15 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 3. 15 अपॉन 30 जिसका आंसर आता है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो इट इज 1 अपॉन रूट 2. बराबर है. सो 1 अपॉन रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ आर, जबकि ये लोग बोल रहे हैं आर का वैल्यू 1 अपॉन 2 आ रहा है. सो दैट मीन्स द आंसर इज फॉल्स. डेटा कंसिस्टेंट है ना, तो भाई वैल्यू कैसे गलत आ रहा है फिर. So data consistent होने के बावजूद वैल्यू गलत दिया है. That is why the statement is false. I hope you all are getting it now. Okay. Correlation analysis is the theory of games. Now this topic बच्चे लोग will be covered in your next standard. That is when you will go in 13th or 14th. ठीक है ना, जब आप लोग आपका BCom लेवल के पढ़ाई करोगे तब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है. So अभी के लिए इतना समझ लो, there is no connection between correlation analysis and game theory. Basically game theory में you have to arrive at a decision and tell कि बंदे को कि आपके पास जो जो resources है अगर आप use करते हो then उसमें से what will be the best strategy या best decision to undertake. ठीक है ना. So the fifth answer is false. There is no connection between game theory and correlation. Next question पूछा है, bxy is less than 0 and byx is also less than 0, then r is greater than 0. तो ये तो गलत जवाब हो गया. हमने सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था ना बच्चे लोग. इफ bxy भी 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, byx भी नेगेटिव है दैट इज 0 से कम है, तो r कैसे ग्रेटर हो सकता है? तो r को भी कम ही होना पड़ेगा 0 से. So that is why the answer is false. Coming to the next one, the following data is not consistent. Okay, byx plus bxy 1.3 दिया है and r 0.75 दिया है और हमें बोला है डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब मैच नहीं होने वाला है. तो करके देख लेते हैं भाई पहले. So as you all know, the property mod of byx plus bxy divided by 2 should be greater या equal to mod of r. तो मेरे पास ऑलरेडी r का वैल्यू है 0.75. नाउ लेट्स सी ऑन सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट आई गेट. तो byx plus bxy का वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू मी एज 1.3. सो इफ आई डिवाइडेड बाय 2 आई गेट 0.65. तो 0.65 कतई ग्रेटर या इक्वल टू नहीं है 0.75 से, राइट. So basically the data is not consistent and अपने को वही बोला है कि data consistent नहीं है, so that is why the statement is true. If u is equal to x minus a and v is equal to y minus b, then bxy is equal to buv. तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था बच्चे लोग, जब हम u और v को सब्स्टिट्यूट करते हैं विदाउट डिवाइडिंग एनीथिंग, तो मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं? चेंज ऑफ क्या यूज कर रहे हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन, करेक्ट. तो चेंज ऑफ स्केल यूज कर रहे हैं हम. सो
हम ओरिजिन भी चेंज करना हो बेसिकली, अगर आप ध्यान रखोगे बच्चे लोग, सो यहाँ पे हम खाली सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर नॉट डिवाइडिंग। तो हमने पढ़ा था ना कि अभी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी मार्क किया था कि द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल बट दे आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। तो वो चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, so we are on the question number, oh just a second, वापस थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रहा है। All right, so basically u is equal to x minus a and v is equal to y minus b। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, so sorry for whatever I told you all just now। So I was telling you all that हम खाली subtract करें, we are not dividing। So this method is called as change of origin, they are not affected by change of origin। तो जब आप सिर्फ माइनस करते हो, that method is called as change of origin। और जब मैं h और k को डिवाइड करूंगी तब वो क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ स्केल बन जाएगा, ठीक है। So basically the regression coefficients are independent of change of origin। तो उस समय पे bxy will be equal to bu v, कोई फर्क नहीं पड़ता है। That is why the answer is true। If equation of regression lines are 3x plus 2y minus 26 is equal to 0 and 6x plus y minus 31 is equal to 0, then the mean of x is 7। तो as I told you बच्चे लोग, मीन का मतलब क्या होता है, arithmetic mean x bar, right? तो मैंने आप लोग को सिखाया whenever you all are having two equations always solve them simultaneously, ये सबसे easy method होता है। So as you can see मेरे को mean of x चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को y को उड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। So what I'll do over here is I'll multiply equation 2 by 2 से multiply कर देते। So this will become 2 6 are 12x plus 2y minus 62 is equal to 0। उसको हम उसमें से we'll subtract the first equation 3x plus 2y minus 26 is equal to 0। तो subtract करने पर all the sign changes as you all know, so 2y and minus 2y gets cancelled। 12 minus 3 is 9x minus 36 is equal to 0, therefore x का value we are getting 4 and we are not getting 7, so that is why the answer is false। Coming to the next one, bxy is the slope of regression line of y on x। तो ये मैंने आपको अभी पीछे बताया था, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x को byx कहा जाता है, not bxy, so the answer is false। Correlation x comma x is 0, this also answer is false because formula क्या समझाया था मैंने आप लोगों को, correlation x comma x हमेशा 1 होता है। Which is your next question, correlation x comma x 1 होता है, yes, the answer is true। Covariance x comma x is equal to variance of x। Now what is this called? तो ये आपको समझाती हूँ, ध्यान देना बच्चे लोग। सो इन 11th स्टैंडर्ड व्हेन वी वर डूइंग कोरिलेशन, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, R is equal to covariance x comma y upon ct x into ct y। एंड जब मैं ये लेसन सिखा भी रही थी आप लोगों को, दैट टाइम ऑल्सो आई हैड गेव यू ऑल अ ब्रश अप ऑफ दिस फॉर्मूला। नाउ R का नाम क्या होता है, R का नाम होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, कोवेरियंस x कोरिलेशन x कॉमा x, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैंने इसको लिखा कोरिलेशन x कॉमा x R को, तो और मैंने जहां पे भी y है सब जगह x को डाल दिया, तो आई गेट कोवेरियंस x कॉमा x अपॉन ct x इंटू ct x। तो ct x इंटू ct x क्या देता है, ct x स्क्वायर। और अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया फॉर्मूला कोरिलेशन x कॉमा x 1 होता है। So if I write 1 is equal to covariance x comma x upon ct x square, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके if I bring ct x square this side, तो ct x square क्या होता है बच्चे लोग, वेरिएंस ऑफ x ही होता है।
तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, कोवेरियंस x, x is equal to variance of x. So the answer is true. आया समझ में? Okay. Regression analysis is used for measuring the degree of the relationship between the variables. Answer is false. अगर डिग्री मेजर करने की बात हो रही है, रिग्रेशन डजंट डू दैट, इट ओनली डूज द प्रेडिक्शन एंड एस्टिमेशन. जो डिग्री की बात हो रही है, देन कम्स कोरिलेशन. रिग्रेशन इस्तेमाल नहीं होता. Regression coefficient of x on y is the slope of regression line of x on y. So which is right. Regression coefficient of x on y क्या होता है? bxy. वही हो, उसको ही बोलते हैं slope of regression line of x on y, which is right. Therefore the answer is true. The variable used for predicting the response is called as the independent variable. तो बच्चे लोग ये चीज याद रखना, जो वेरिएबल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल सिखाया था ना, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट. सो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्स. तो डिपेंडेंट का पेट नेम में बोल सकती हूँ. तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका दूसरा नाम होता है रेस्पॉन्स, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका दूसरा नाम होता है प्रेडिक्टर. ये आपको पता होना चाहिए. सो यहां पे बोला है द वेरिएबल यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द रिस्पॉन्स, मतलब टू फाइंड आउट द डिपेंडेंट वेरिएबल, टू प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो आंसर सही है. ओके. सो रिस्पॉन्स किसका दूसरा नाम है बच्चे लोग? डिपेंडेंट का. ठीक है. और इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम है प्रेडिक्टर. ओके. सो विद दैट द ट्रू और फॉल्स कम्स टू एन एंड. Moving forward with question number 3, fill in the blanks. If n is equal to 5, summation xy 76 है, summation x square y square 90 है, and summation x और summation y 20 है, तो what will be the covariance? तो covariance का फॉर्मूला क्या है बच्चे लोग? as per the situation given, summation xy upon n minus x bar into y bar, या नहीं तो आप लिख सकते हो समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन, और वाई बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन वाई अपॉन एन. सो 76 अपॉन 5 माइनस 20 अपॉन 5 इंटू 20 अपॉन 5 विच इज 4 इंटू 4 16. सो 15 माइनस 2 माइनस 16 मेरे को देता है माइनस 0.8. सो योर आंसर इज माइनस 0.8. mod of bxy plus byx is greater equal to 2 mod of r. ये हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं. Among the given regression lines, 6x plus y minus 31 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 26 is equal to 0. The regression line of x on y is dash. तो जैसे मैंने आपको बोला बच्चे लोग, आपको पहचानना है तो केस 1 केस 2 सॉल्व करके, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है और पीछे भी एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन सॉल्व एंड सी फॉर योरसेल्फ. मैंने पहले वाले को x on y लिया है एंड दूसरे वाले को y on x लिया है, एंड व्हेन आई चेक्ड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम इट वाज लेस देन 1. तो इसका मतलब फर्स्ट वाला मेरा x on y हो गया है. सो व्हाट इज द आंसर? 6x plus y minus 31 is equal to 0. Moving forward with the fourth one, ये मैं ऑलरेडी आपको पीछे सिखा चुकी हूँ बच्चे लोग. If u is x minus a upon c, तो खाली subtraction होता है change of origin and division बनता है change of scale. b is equal to y minus b upon d, तो bxy क्या होगा? तो bxy क्या होगा बच्चे लोग? h अपॉन के बोला था ना मैंने आपको, देखो bxy is equal to h अपॉन के buv, बराबर. तो bxy का बदले अगर मान लो c आपका h है और d आपका k है, तो h is c and d is k, तो bxy c अपॉन d buv बन जाएगा. आया समझ में? क्लियर है? ओके. If the regression equations are 8x minus 10y plus 66 is equal to 0 and 40x minus 18y 2014, the mean value of y is dash. तो मीन वैल्यू वापस वो x बार पूछ रहे हैं बच्चे लोग, सो दोनों इक्वेशन अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. मेरे को y चाहिए, मतलब x हटाना पड़ेगा. So I'll multiply the first equation by 5. 5 8s are 40x minus 50y is equal to minus 330.
उससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी सेकेंड इक्वेशन. ऑन सब्ट्रैक्टिंग एंड सॉल्विंग आई गेट द वैल्यू ऑफ y टू बी 17. तो आपका मीन ऑफ y इज 17. If the sign of the correlation coefficient is negative, then the sign of the slope of the respective regression line is also dash. तो बच्चे लोग ये पूछ क्या रहे पहले तो समझने की कोशिश करो. Now what do you mean by correlation coefficient? Correlation coefficient का मतलब होता है R. And if you all remember, मैंने तुम लोग को R का फॉर्मूला क्या बोला था? अपन लेते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ BYX into BXY. बराबर है. And do you all remember second important thing? अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो R नेगेटिव होगा. If both the regression coefficients are positive, तो R positive होगा. बराबर है. So now understand what they are asking you. अगर R नेगेटिव है तो इसका मतलब साइन ऑफ द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या होगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा ना, बिकॉज ये दोनों के दोनों भी नेगेटिव है. So the answer of sixth is negative. The value of product moment correlation coefficient between x and y is dash. तो वो आपको पूछ रहा है what is the value of product correlation between x and x क्या होता है. तो correlation coefficient किसको बोलते हैं बच्चे लोग? R को ही बोलते हैं ना. So वो आपसे पूछ रहा है the correlation coefficient between x, x. तो correlation between x, x क्या होता है? 1 ही होता है ना. अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा. So that is why the answer is 1. Moving on to the next one. Just give me a second. Arithmetic mean of positive values of regression coefficient is greater than or equal to. अब ये मजेदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना. Arithmetic mean का मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना. तो बच्चे लोग अगर मैं नॉर्मल सेंस में तुम्हें पूछूं एवरेज कैसे निकालते, तो आप बोलोगे मैम कंसिडर कर लो दो वैल्यूज है ए और बी, तो अपन ए और बी को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. तो बच्चे लोग याद करो, मैंने तुम्हें अब भी रिग्रेशन का कोएफिशिएंट का एक प्रॉपर्टी सिखाया जो ऐसे दिखता है. तो मान लो तुम्हारा ए है BXY, तुम्हारा बी है BYX. सो BXY प्लस BYX डिवाइडेड बाय 2 मॉड के अंदर डाला तो हो गया ना अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज. पॉजिटिव वैल्यूज क्यों? बिकॉज मॉड के अंदर जाके सारे वैल्यूज पॉजिटिव हो जाते. इज ग्रेटर और इक्वल टू, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ R. तो व्हाट इज द आंसर? कोरिलेशन कोएफिशिएंट या मॉड ऑफ R. तो आया कि नहीं लॉजिक समझ में? ओके. सो U का वैल्यू बोला है x माइनस 20/5 एंड V का वैल्यू बोला है y माइनस 30/4. देन BYX क्या हो जाएगा? सो वही तुम्हें बोलती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 आपका H है और 4 आपका K है, ठीक है ना. सो वो आपको बोल रहा है U is x minus 20/5 and V is y minus 30/4. तो BYX क्या होगा? तो BYX क्या होगा? ऑफ कोर्स पीछे वाला ऊपर आता है ना, तो BYX का वैल्यू होगा K/H BVU. तो x on y का H/K होता है और y on x का K/H BVU होता है. सो क्लियरली आपको आंसर दिख रहा है. तो अगर मैं उस हिसाब से बोलूं तो आंसर इज 4/5 BVU. The geometric mean of negative regression coefficients is dash. अब सबसे पहले geometric mean क्या होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे लोग. इन 11th स्टैंडर्ड सेट्स एंड सीक्वेंसिंग में फॉर्मूला है ना. geometric mean का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x into y. तो वो तुमसे पूछ रहा है geometric mean of negative regression coefficients. तो माइनस BYX into माइनस BXY क्या होगा बच्चे लोग? माइनस R. बोला ना अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स नेगेटिव तो R will also be negative, and अगर दोनों पॉजिटिव है so R will also be positive. डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज डैश. तो मैंने अभी तुम्हें बोला था ना डिपेंडेंट का दूसरा नाम इज रेस्पॉन्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का दूसरा नाम इज प्रेडिक्टर्स. ओके. BYX is the dash of regression line of y on x, तो उसको बोला जाता है slope. So with this बच्चे लोग I think we come to an end of chapter 3, but वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है. As I told you technical error की वजह से I wasn't able to complete the third chapter.
तो इसी में आई एम कंटिन्यूइंग विद द 4th चैप्टर जो कि है अपना टाइम सीरीज के ऑब्जेक्टिव, सो दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर डिफरेंट वीडियोस या अलग अलग वीडियोस सुने। सो बच्चे लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम वी मूव ऑन टू मैथ्स 2 का चैप्टर 4 टाइम सीरीज के ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर रियली वेरी इजी। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। Which of the following can't be a component of time series? तो टाइम सीरीज में कौन नहीं आता है? सीजनल आता है, साइक्लिकल है, ट्रेंड है, मीन डज नॉट कम। सो द वेरी फर्स्ट आंसर इज डी, मीन। Which component of time series refers to erratic time series movement that follow no recognizable or regular pattern? तुम्हारे क्वेश्चन में ही आंसर है, कोई पैटर्न रेगुलर नहीं है, तो जो रेगुलर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? इरेग्युलर। तो आंसर इज डी। The following trend line equation was developed for annual sales from 1984 to 1990 with 1984 as the base or 0 year. और तुम्हें एक ट्रेंड लाइन इक्वेशन दिया है और उन्होंने तुम्हें बोला है एस्टिमेट द सेल्स फॉर 1984। सो द लॉजिक इज वेरी सिंपल बच्चे लोग, उन्होंने तुम्हें क्या बोला? 1984 इज 0 ईयर, मतलब द वैल्यू ऑफ 1984 इज 0। दैट मीन्स x का वैल्यू 0 है, तो तुम्हें x के जगह 0 डाल के देखना है, तो 60 इंटू 0 0 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? y इज इक्वल टू 500। सिंपल। An overall or upward or downward pattern in an annual time series would be contained in which component? कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग? बोला था ना एक लाइन का रहता है, या तो कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा लाइन या तो कंटिन्यूअसली नीचे जाएगा। सो दिस यू कैन सी इन विच टाइप ऑफ टाइम सीरीज? आंसर इज ट्रेंड। मूविंग एवरेजेस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड कंपोनेंट। तो मूविंग एवरेजेस किसके लिए यूज करते हैं? टू फाइंड आउट अ कंटिन्यूअस इंक्रीज और कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द गिवन डेटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था बहुत सिंपल वाले हैं, ज्यादा मगजमारी नहीं है इसमें। डैश कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय अ स्मूथ लाइन। सो द आंसर इज ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड। Dash component of time series is indicated by periodic variation year after year. तो variation मतलब changes उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे, तो ये हमको कभी देखने मिलती है? seasonal में। So the answer is seasonal variation. The complicated but efficient method of measuring the trend of time series is least square method. So when I was teaching you all that time only I told you all थोड़ा सा complicated है, but it is one of the exact method, most efficient method for measuring time series. The simplest method कौन सा है बच्चे लोग? Graphical method. Very good. The method of measuring trend of time series using only averages, question में आंसर है moving averages. Coming to question 3rd, true or false? The secular trend component of time series represents irregular variation. Answer is false. Seasonal variation can be observed over several years. Yes, answer is true. Cyclical variation can occur several times in a year. False. Cyclical मतलब ups and downs, तो वो एक साल में बार बार नहीं होता है, it comes बहुत टाइम बाद, एक साल में आया तो उसके बहुत टाइम बाद होगा वैसा। So the answer is false. Moving average method of finding the trend is very complicated and involves several calculations. कतई नहीं, so answer is false. Least square method of finding the trend is very simple and does not involve calculations. ये भी कतई नहीं हो सकता, so the answer is false again. So with this we come to an end of chapter 4 of Maths 2 time series. Sorry for the little bit technical errors which are happening, but I hope you all will listen to the entire video and definitely this will prove to be beneficial for you all. So stay tuned, keep following, keep spreading the word until we meet in our next lecture. So take care and stay safe everybody. Thank you so much for listening to me.